So hello everyone, how are you all? After a long break, we are once again, we are going through with the chapter AC, and beta we have done till LCR circuit and all these things. Now today we are doing some numericals and radio tuning we will go. तो एक क्वेश्चन है मेरे पास में. The question is like this: in a L circuit and R circuit, given that the value of L is 50 millihenry, the value of R is not known to us, and there is a frequency of 50 hertz. There is a AC source having frequency of what? 50 hertz. It is given, and the bulb is brightening. ठीक है, bulb क्या हो रहा है? Bright कर रहा है. Condition क्या हुई? If we are adding a capacitor to this circuit, if we are adding a capacitor to this circuit in this way, this is the resistor, and we are adding what? A capacitor. The question comes to us is that what is the value of C? What is the value of C so that the bulb brightness is what? Maximum. So the brightness of bulb is what? Maximum. तो question क्या है कि if a capacitor is added in series with LR circuit, how LR circuit such that the brightness of the bulb, R मतलब क्या है? ये बल्ब है. R मतलब क्या होता है? बल्ब. बल्ब के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होता है. ठीक है, ये क्या है बेटा? बल्ब है. ठीक है, such that the brightness of the bulb is maximum. चलिए, तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब शुड बी व्हाट? मैक्सिमम. तो मतलब पहले दिया था आपको एक इंडक्टर और एक रजिस्टर, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. रजिस्टर, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉट नोन टू अस, and the condition is that if we are moving, switching to this condition, what is the value of C? What is the value of capacitance so that the R is what? Is glowing maximum brightness मिले. अब यहां पर जो शब्द maximum है ना, this is the only answer in the problem. So if in any question you are getting the term maximum brightness, then one thing you should notice in your mind, it means that the current should flow through the circuit is what? Maximum. And तो solution क्या होगा इसका? तो for maximum brightness, I should be what? Maximum. और जब I maximum होगा तो for this condition Z should be what? Minimum. And what is the condition when Z should be what? Minimum, and I should be what? Maximum. This condition is known as what? Resonance. This is known as what? Resonance. At resonance what we have got? We have got XL is equal to how much? XC. So this is the required solution. What is the formula for XL? 2 pi f. XL क्या होता है? ओमेगा इंटू वॉट? L. और XC क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा C. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? C फाइंड आउट करना है. तो देन द वैल्यू ऑफ C इज वॉट? ओमेगा स्क्वायर इंटू वॉट? L. And we will solve this. The C is equal to 1 upon what is the value of omega? 2 pi f का whole square into what? L. Put the value and get the solution. 2 pi. What is the value of f? Is how much? 50. So this is what? 50 to the whole square. And what is the value of C? 50 millihenry. So 50 into 10 to power minus 3. So this is your required solution. When you will solve this, you will get your solution. This is your first question. When you will get, the trick is what? For maximum, I am understanding this is the resonance condition. For maximum brightness, current should be what? Maximum. And current should be maximum. It means the value of Z should be what? Minimum. Z is what? Impedance, resistance of series LCR circuit. ठीक है बेटा, तो ये conditions समझ में आई. This is our first question. Now moving on to the next question. So next problem is find the reading of ammeter in the given circuit. This is the given circuit. In this circuit there is capacitance, there is inductor, there is what? Resistor. The value of XC is 4 ohm, XL is 4 ohm and R is this. बहुत सिंपल सा है. अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको एमीटर की रीडिंग निकालनी है तो जरा बताइए मुझे एमीटर क्या रीड करता है. तो एमीटर किसको रीड करता है? करंट को. अच्छा, वोल्टेज कितना दिया हुआ है? अगर मैं कहूँ तो इसमें VRMS हमें दे रखा है 90 वोल्ट.
ठीक है, तो ये किसको निकालेगा, IRMS को निकालेगा। क्या निकालेगा, IRMS। ओम्स लॉ के हिसाब से I क्या होता है, V अपॉन Z। यहाँ Z लगाएंगे, याद आया, रेजिस्टेंस क्या होता है सर्किट का, Z होता है। अच्छा, Z का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, Z का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिए, what is the value of R in the given problem? The value of R is how much, 45. So this is 45 square. This is how much, L is 4, C is also what, X is how much, 4. This is how much, 0. So Z is equal to how much, 45 ohm. Substitute this value here. So IRMS, VRMS is given to us is what, 90 divided by what, 45. The answer comes to be what, 2 ampere. So simple question. तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि हमको कैसे निकालना है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो आप इसको क्या मानेंगे, आंसर आया VRMS मानेंगे। क्या मानेंगे, VRMS मानेंगे। तो बेटा एक टाइप की प्रॉब्लम ये हो गई हमारी। नेक्स्ट देखते हैं। सो इन द गिवन क्वेश्चन, an LCR series circuit with L is equal to 100 मिली हेनरी। तो ये कितना दे रखा है, 100 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है भाई। C 100 माइक्रो फैरेड, तो माइक्रो मीन्स व्हाट, 10 की पावर -6 फैरेड। एंड R इज इक्वल टू हाउ मच, 120 वोल्ट इज कनेक्टेड। ये सारे कनेक्टेड है, इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सोर्स ऑफ EMF जो दिया हुआ है हमको, ये दे रखा है इसका 30 इंटू वॉट साइन 100t। फाइंड I0 एंड FR। अब एक ये भी पूछ सकता था, फाइंड Z I0 एंड FR। तो I0 निकालना है तो Z तो निकालना ही पड़ेगा। तो ऐसा एक सर्किट दिया हुआ है, आपको निकालना है। क्या क्या करेंगे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा बेटा। सबसे पहले आप Z निकालिएगा। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Z बताइए, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये निकालिएगा पहले आप, XL दिया हुआ है, XC दिया हुआ है। अच्छा, और क्या फॉर्मूला लगेगा आपके पास में, आपके पास में आएगा I0 इज इक्वल टू हाउ मच, V0 अपॉन वॉट, V0 अपॉन Z। ये लगाइएगा फॉर्मूला। अच्छा, XL का फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा L। XC का फॉर्मूला कितना होगा, 1 अपॉन ओमेगा C। और अच्छे से लिखोगे तो 2 पाई F इंटू L। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 पाई F इंटू वॉट C। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो ओमेगा, तो ओमेगा कितना दिया हुआ है, ये क्या है, दिस इज E0 हाउ मच 30। यहाँ पर ओमेगा कितना है आपके पास में, 100। ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला, इसको मैंने कैसे निकाला, याद करिए, इसको मैंने निकाला है E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा t। तो ये तो ओमेगा हो गया और ये E0 हो गया। अब आप इजीली निकाल सकते हैं। फिर एक फॉर्मूला और बचा FR अगर मैं कहूँ तो ये कितना होता है, 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये रेजोनेट कंडीशन के लिए पूछा, बोला अगर रेजोनेट में हो जाए तो क्या होगा, L दिया C दिया, FR लगा लीजिए। तो दिस इज द क्वेश्चन, यू शुड ट्राई एट योर होम एंड सॉल्व इट। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज नोन एज व्हाट, दैट टॉपिक इज नोन एज रेडियो ट्यूनिंग। देखते हैं क्या होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, रेडियो ट्यूनिंग। समझते हैं रेडियो ट्यूनिंग क्या होती है। सभी लोगों घरों में रेडियो देखे होंगे, आजकल तो नया कैरनवेल करके आ चुका है, पुराने ज़माने में रेडियो करता था। उस रेडियो में क्या हुआ करता है बेटा, अगर मैं रेडियो की बात करूं तो रेडियो के अंदर एक L सर्किट हुआ करता है, ठीक है, एक C सर्किट हुआ करता है, एक L सर्किट हुआ करता है और साथ में एक रजिस्टेंस हुआ करता है R। तो R L C तीनों चीज़ें होती हैं। साथ में यहाँ सोर्स वोल्टेज तो वही होगा, बैटरी लगाते हैं, ये चीज़ हुआ करती है, मतलब LCR सर्किट होता है। और उसके अंदर एक एंटीना, मैंने एंटीने को यहाँ बना लिया। सपोज कर लो ये क्या है, ये एक रेडियो का एंटीना है, ठीक है। अब यहाँ सराउंडिंग्स हैं, ये सराउंडिंग्स, तो इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। जैसा आप देखते हो 92.7 हो गया, 93.5 हो गया, 94 हो गया, 95 हो गया, 98.0 हो गया, ऐसे करके बहुत सारे रेडियो स्टेशंस मिलते हैं। तो ये जो एंटीना होगा, ये जो एंटीना है, इसमें ये सारी की सारी वेव्स क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी की सारी वेव्स क्या करेंगे, इसमें ओवरलैप करेंगे, कुछ नीचे ये, तो मतलब ऐसा नहीं कि इस एंटीने के अंदर सिर्फ एक है। अच्छा, एंटीना लगा किससे है, एंटीना रेडियो में, इसका मतलब ऑल द वेव्स, all the EM waves are
सुपर इम्पोज्ड इन LCR सर्किट। तो भैया अब सारी की सारी वेव्स इस LCR सर्किट में है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रेडियो ट्यूनिंग, रेडियो ट्यूनिंग या खाली ट्यूनिंग। ठीक है, ये आपका टॉपिक है कि आप क्या पढ़ रहे हैं? रेडियो ट्यूनिंग। आपको ट्यूनिंग करनी है, तो ट्यूनिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? या तो आप C की फ्रीक्वेंसी चेंज करिए, या तो L की फ्रीक्वेंसी चेंज करिए, या C की फ्रीक्वेंसी, दोनों करते हैं। जनरली जो आपके पास डिवाइसेस होते हैं उसमें हम किसको चेंज करते हैं? C को। तो हम क्या करेंगे? वी विल चेंज C और L। कैसे? तो उसमें एक नॉब लगा होता है, रेडियो के अंदर क्या लगा होता है? एक छोटा सा नॉब, गोल सा, इसको घुमाते हैं। वी विल चेंज C और L बाय रोटेटिंग द नॉब, NOB लिख देता हूं मैं, या KNO, नॉब, स्पेलिंग देख लीजिएगा, नॉब ऑफ रेडियो। ठीक है, तो एक्चुअली आपने क्या चेंज करा? C को चेंज कर लिया। सपोज कर लीजिए मैं C को चेंज कर रहा हूं। अब आप क्या करोगे? जब नॉब को चेंज करोगे तो आप उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो इससे हो क्या रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ C इज चेंजिंग और इज एडजस्टिंग। कौन एडजस्ट कर रहा है? हम एडजस्ट कर रहे हैं। और मान लीजिए उस फ्रीक्वेंसी को मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ले आया और वो फ्रीक्वेंसी है 93.5 हर्ट्ज। मेरी मर्जी, मैं कितनी भी रख सकता हूँ, ये भी रख सकता हूँ, ये भी रख सकता हूँ, ये भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने कितनी रखी? 93.5 रखी। अब इसको जरा ग्राफ से देखिए। अगर ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, कौन सी है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो होगा क्या? इस समय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आई क्या होना चाहिए भैया? मैक्सिमम होना चाहिए। ग्राफ बनाएं, थोड़ा सा ग्राफ पे ध्यान दीजिए। पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम लोग, ग्राफ भी पढ़ा था हमने, ग्राफ का था। तो अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी ले लें और यहाँ पर मैं क्या ले लूँ? यहाँ पर मैं करंट ले लूँ I0, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता था, करंट और इसका। ये जो है ये मेरा करंट का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? करंट। तो ये जो मेरे पास वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? I0। और इसके अक्रॉस जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी वो कितनी होगी? FR होगी। अब ध्यान से देखिए, तो इस फ्रीक्वेंसी पे ये क्या है? मैक्सिमम, और मैक्सिमम करंट है तो पावर भी कैसी होगी? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पावर भी कैसी होगी? मैक्सिमम। मतलब साउंड कैसा आएगा? मैक्सिमम आएगा। साउंड कैसा आएगा? मैक्सिमम। तो यहाँ पर जब पावर मैक्सिमम होगी तो साउंड कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये चीज थी ट्यूनिंग। अब जरा समझते हैं, क्या ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही होगी? बिल्कुल आ रही होगी। तो अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैंने फ्रीक्वेंसी रखी 93.5। तो हम देखते हैं जो हमारे रेडियो सिग्नल होते हैं, अगर ये देखें तो ये निकल के आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 93.7 और ये निकल के आ गया 93.2। तो इतनी कम फ्रीक्वेंसी पे देखिए कोई चैनल होता ही नहीं है। एक पर्टिकुलर रेंज होती है जिसमें कोई दूसरा चैनल आता है। ठीक है, उस चीज को, वो एक गैप होता है। वो क्या होता है? गैप होता है। उस गैप को हमें रखना पड़ता है। दूसरी चीज, तो पहली चीज आई कि गैप होता है। आपको देंगे ही नहीं कि आप 93.5 पे अच्छा चैनल चल रहा है, आप 93.6 मिल जाए, 93.7 मिल जाए, ऐसा कोई चैनल अगर आपको मिल जाए तो पॉसिबल ही नहीं है कि मार्केट में आपको इस रेंज या इस फ्रीक्वेंसी का कोई दूसरा चैनल मिल जाए। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो रेडियो कंपनीज होती हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज देती हैं। तो हमको अलग अलग फ्रीक्वेंसी, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर कुछ गैप है, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ गैप है, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ गैप है, तो वो गैप सेट करेंगे। ऐसा नहीं जो मन में है वो फ्रीक्वेंसी हमने इसमें ले ली। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। ये जो पीक है ये कैसा होना चाहिए? शार्प होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शार्प। और इसकी एक बैंड विड्थ होती है। क्या होती है? बैंड विड्थ होती है। तो अब हम अपने अगले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियो ट्यूनिंग बताई है कि कैसे हम ट्यूनिंग करते हैं, बस। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि पूरी ट्यूनिंग को और डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम शार्पनेस, बैंडविड्थ,
एंड क्वालिटी फैक्टर एंड क्यू फैक्टर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्यू फैक्टर। तो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल डिस्कस, बट दिस इज द इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन देखिए, पढ़िए, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।